All right. So last class we were doing trigonometric identities. Complete नहीं हुई है अभी, so continue करेंगे उसी में. There are a few more identities that we have to first do, and उसके बाद we'll start with limits. ठीक है? सर मेरे बैकग्राउंड नॉइज आ रही है क्या? बिकॉज आई कैन म्यूट माई सेल्फ. हाँ, कर ले म्यूट. सर अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो तो आई कैन म्यूट माई सेल्फ. नहीं नहीं, मुझे नहीं आ रही. ठीक है, देन इट्स फाइन. हाँ. ओके. Okay, so just a quick recap of what we did in the last class. ठीक है? एक बार रिवीजन करते हैं जल्दी से. So trigonometric functions and identities we were doing. So सबसे पहले क्या किया था? We defined radian measure. Radian unit अपन ने define किया कैसे होता है. So theta is equal to L upon R. This is how we define theta radians. ठीक है? Where L is the length of the arc and R is the radius of the circle. Then using this definition we give the definition of 1 radian. 1 radian is the angle subtended by an arc of length equal to the radius of the circle. So when the length of the arc is R and the radius of the circle is R, then the angle made at the center will be 1 radian. ठीक है? This is constant for any circle. कोई सा भी circle लो, छोटा या बड़ा या कितना भी बड़ा, huge or very small, it doesn't matter. This remains a constant value. ठीक है? Then we saw the relationship between degree and radians. So we got that pi radians is equal to 180 degree. Simple binary unitary method अपन ने लगाया था. The angle made by a length of arc 2 pi r is 360 degrees. Angle made by a length of 1 unit will be 360 by 2 pi r. Angle made by length of arc equal to r will be 360 by 2 pi r into r. So that is 180 upon pi. And this angle is same as 1 radian. From here we get the relation that pi radians is equal to 180 degree. याद आ रहा है ये सब? ठीक है? Using this definition, we can convert any radians to degrees or degrees to radians. So some standard or some specific angles that we occasionally use are pi is equal to 180 degrees. Now radians अपन लिखते नहीं है, and most of the times we do not say it also. ठीक है? So when I say pi is equal to 180 degrees, I mean that pi radians is equal to 180 degrees. ठीक है? यहीं से we can write pi by 2 is equal to 90 degrees, pi by 3 is equal to 60 degrees, pi by 4 is equal to 45 degrees, pi by 6 is equal to 30 degrees. ठीक है? 2 pi by 3 will be 120 degrees, and so on. We can give any angle in terms of radians or degrees. ठीक है? उसके बाद then we came to the how do we define angle of any value. How do we define angle of any value? So सबसे पहले positive और negative angle define करते हैं. Positive angles are those angles when we rotate in the anti-clockwise direction, and when we rotate in the clockwise direction the angle is taken to be negative. Then we see that angles on the positive x-axis are of the type 0, positive x-axis 0, 2 pi, that is 360 degrees, then 4 pi, then 6 pi, then 8 pi, and so on are positive x-axis angles. Positive y-axis पे angles होते हैं pi by 2, 5 pi by 2, 9 pi by 2, 13 pi by 2, and so on. ऐसे टाइप के positive angles अभी चल रहे हैं. Negative x-axis पे आ जाएंगे तो the angles that we get on that line is pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi. ठीक है? Then negative y-axis पे 3 pi by 2, 7 pi by 2, 11 pi by 2 ऐसे angles आएंगे. ठीक है? Negative भी लिख सकते हैं. Positive x-axis पे negative angles कौन से हो जाएंगे?
-2 पाई, बिकॉज -360 अपन ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया ऐसे, तो वापस 360 डिग्री रोटेट करने पे विल गेट ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बट एंगल विल बी नेगेटिव. सो -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई, ये सारे एंगल्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हुए. पॉजिटिव वाई एक्सिस पे एंगल्स कौन से होंगे? सो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए मुझे ऐसे रोटेट करना है 270 degrees, that is 3 pi by 2. So -3 pi by 2, -7 pi by 2, -11 pi by 2, and like these. ठीक है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है. नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -pi, -3 pi, -5 pi, all these angles. And negative y axis पे -pi by 2, -5 pi by 2, ये सारे एंगल्स आएंगे. So फिर अपन ने कंक्लूड किया था that angles which are on the x axis, they are of the type n pi. The general form is n pi on the complete x axis, that is integral multiples of pi. वो सारे angles x axis पे lie करेंगे. And then we saw that odd multiples of pi by 2 will be on the y axis, odd multiples of pi by 2. That is 2n plus 1 into pi by 2, where n is an integer. वो सारे angles y axis पे lie करेंगे. मुझे दिख रहा है तूने रिवीजन नहीं किया है. रिवीजन नहीं करेगा तो नेक्स्ट क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा. Always revise before the next class. ठीक है? And Sir, actually I don't have my notes from the last class. मैं अभी दूसरी जगह पे. अरे तो उसी दिन करना चाहिए था ना जिस दिन क्लास थी, या उसके नेक्स्ट दिन करनी चाहिए थी. हाँ, right. Don't miss classes as well, because I'll do that next time, sir. हाँ, मैं जानता हूँ तुम लोगों को IB स्टूडेंट्स को काम बहुत ज्यादा होता है, but you have to separate school work with tuition work. Yes, because sir. अगर नहीं करोगे तो स्कूल के कामों में फंसते रहोगे. वो तो हो ही जाएंगे. अगर तुम लोग ऐसे नहीं करोगे कि स्कूल को ज्यादा टाइम नहीं दोगे, तब भी वो काम होने वाले हैं, बिकॉज यू हैव टू डू दैट. somehow you will manage to do that, बट उसके वजह से सफर कराओगे अगर ट्यूशन वर्क, तो फिर यू विल बी सफरिंग इन योर स्टडीज, क्योंकि अब फिर मैथ्स समझ नहीं आएगी, फिजिक्स समझ नहीं आएगी, क्योंकि स्कूल वाले तो नहीं पढ़ाते हैं ऐसे कि समझा सकें. आ रहा है समझ में? IAS वगैरह यू विल डू इट, चाहे कितना ही टाइम हो, कितना ही कम टाइम हो, यू विल मैनेज टू डू इट. उसके वजह से क्लासेस को मत सफर कराना, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एंड देन यू विल से कि सिलेबस नहीं हुआ है सर. ठीक है? ऑलराइट. नाउ नहीं, मतलब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए फिर मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स ऐसे करने पड़ेंगे जिसमें तुम लोग भी परेशान होने वाले हो. आ रहा है समझ में? ठीक है, मैं तो करूंगा ही, बट यू विल ऑल्सो बी अलॉन्ग विथ मी. तो फिर वो सही नहीं रहेगा. नाउ इसके बाद क्या किया था? एंगल्स ऑफ एनी वैल्यू निकाल दिया. देन वी गेव दैट द साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और द फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाएगा क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एनी एंगल. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स. So we arrived to the ASTC rule. Because sin, I remember that. हाँ, तो उसमें क्या था? cos x की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, x कोऑर्डिनेट पे, एंड sin x की वैल्यू डिपेंड कर रही है y पे, y कोऑर्डिनेट पे. ठीक है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में Sin is positive. Sin is positive. That means sin and cosec are positive. बाकी सब negative. हाँ. Third quadrant में cos, tan is positive. Tan and sec. Tan and cot क्या कर रहा है? Sorry, tan and cot, and fourth में sec and cos are positive. बाकी सब negative है. Yes. ठीक है? This was the ASTC rule. Then trigonometric identities पे आए थे, very important.
ठीक है, सबसे पहले वी स्टार्टेड विथ द कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, या नहीं, आई थिंक वी स्टार्टेड विथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले, राइट? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? साइन 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट सोचते ही आना चाहिए, 90 आने वाला है कहीं ना कहीं। So sin 90 minus theta is equal to cos theta. Cos 90 minus theta is sin theta. Tan 90 minus theta is cot theta. Cosec 90 minus theta is sec theta. Sec 90 minus theta is cosec theta. And cot 90 minus theta is tan theta. Yes, these are the complementary angle formulae. Complementary angle इसलिए बोलते हैं because 90 minus theta plus theta will be complementary. ये दोनों एंगल complementary होने वाले हैं, 90 होने वाला है, मतलब सम। उसके बाद कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पे आए थे। सो साइन ए प्लस बी, दैट इज साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला मैंने दिया था, दिस इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, देन साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज sin a cos b minus cos a sin b। अभी ये तूने रिवीजन नहीं किया इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूं, ठीक है, वरना आई वुड हैव बीन अ बिट फास्टर देन दिस, बट वी हैव टू डू दिस। उसके बाद cos a plus b, cos a plus b का फॉर्मूला था cos a cos b, क्या कर रहा है? cos a cos b प्लस sin a sin b, गलत, माइनस साइन ए साइन बी, नहीं, माइनस बोला क्या तूने अभी? हाँ, cos a प्लस b में cos a cos b माइनस आता है sin a sin b, so cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b। sin a sorry, cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b। अब यहाँ पे जब cos a माइनस b हो रहा है तब उनके बीच में पॉजिटिव आ गया, cos a cos b plus sin a sin b, ठीक है। Then using these formulas also only we derived the next four formulas, that is sin a plus b plus sin a minus b is equal to 2 sin a cos b, then sin a plus b minus sin a minus b is 2 cos a sin b। Sir, could you repeat the last ones again? Sin a plus b minus sin a minus b is equal to 2 cos a sin b। Okay, got it, हाँ। 2 cos a sin b। got it। उसके बाद cos a plus b plus cos a minus b is 2 cos a cos b। लास्ट वाले में थोड़ा सा डिफरेंट है, sin a plus b minus sin, sorry, as I used sin, cos a plus b minus cos a minus b is equal to minus 2 sin a sin b, माइनस आएगा यहाँ पे, cos a plus b minus cos a minus b is equal to minus 2 sin a sin b, या फिर माइनस को उस तरफ एडजस्ट कर देते हैं तो cos a minus b minus cos a plus b is equal to 2 sin a sin b, ऐसे भी लिखते हैं। उसके बाद these formulas are known as sum to product formulae। so left hand side में sum है, right hand side में we are converting it into product of two ratios। उसके बाद CND formulas, so sin a plus b, sorry, इन्हीं फोर से जो अपन ने अभी किए उन्हीं से CND formulas भी derive कर सकते हैं, where we put a plus b is equal to c and a minus b is equal to d, तो formulas बनते हैं sin c plus sin d is equal to 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, then sin c minus sin d is equal to 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। नेक्स्ट होता है cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2
into cos c minus d by 2. Then cos c minus cos d is equal to 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2. d minus c हो जाएगा क्योंकि माइनस मैंने एंगल में एडजस्ट कर दिया। आ रहा है क्या समझ में? दिस वाज द कंप्लीट thing we did in the last class, complete revision of that. Got it? So now we will continue further. Some trigonometric identities. Okay. मानसी का भी कुछ पता नहीं है, no information also. Okay, I don't think she'll be coming. कोई बात नहीं. Okay. So, next formula. Double angle formula. First one, sin 2 theta. So now double angle formula इसीलिए बोल रहे हैं because यहाँ पे double हो रहा है theta का. So double of the angle. Sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta. So whatever angle we have here, जो भी sin 2 theta आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो angle आ रहा है उसका हाफ एंगल यहाँ पे हो जाएगा. So 2 sin theta cos theta हो जाएगा, हाफ एंगल. ठीक है, जैसे यहाँ पे sin 60 लिखा, sin 60 degrees will be equal to 2 into sin 30 into cos 30, ऐसा लिख सकते हैं. अब how do we derive this formula? सिंपल सी बात है, sin a plus b का फॉर्मूला था sin a cos b plus cos a sin b. a plus b, ठीक है, दोनों सेम करते हैं अगर, तो b की जगह मैं a लिख दूं, तो I will get sin of a plus a which is 2a. Okay, got it. और यहाँ पे क्या बनेगा, sin a cos a plus cos a sin a which is same as 2 sin a cos a. तो अब a की जगह अपन ने थीटा लिख दिया. Got it. Second, cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1, और this is one form. ठीक है, अगेन सिंपल वही डेरिवेशन है. cos a plus b का जो फॉर्मूला है उसमें को a के इक्वल लिख. ठीक है, तो यहाँ पे cos 2a is equal to cos a cos b minus sin a sin b. सॉरी, cos a minus sin a sin a, ऐसे आएगा. अरे b की जगह a लिखा है ना. हाँ सही सही. cos a into cos a minus sin a into sin a आएगा, तो cos square a minus sin square a आएगा. ठीक है, जल्दी से लिख देते हैं. cos 2a is equal to cos square a minus sin square a आने वाला है from the compound angle formula. अब cos square a minus sin square a, sin square a को मैं चेंज कर सकता हूं. This can be written as 1 minus cos square a. Correct? So this is 2 cos square a minus 1. ये फॉर्मूला आ गया. This is one form. ठीक है, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे मैंने sin square a को चेंज किया था, अगर मैं cos square a को चेंज कर दूं, cos square a को लिख सकते हैं 1 minus sin square a, तो ये बन जाएगा 1 minus 2 sin square a. This is another form of cos 2 theta.
थीटा लिखना है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा होगा ये। Another form of this is 1 minus sine, sorry, tan square theta upon 1 plus tan square theta. So same cos 2 theta का ही। क्या? हाँ, cos 2 theta का ही, cos Okay, theta got 2 it. theta का ही लिख रहा हूँ। This is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. ये कैसा आया? अभी जस्ट मैंने लिखा था cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta. यहां तक पहुंच गए? ठीक है, पूरी राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई बाय cos square theta and divide by cos square theta. ठीक है, या फिर ऐसा कर दें, instead of doing this is cos square theta upon 1, cos square theta minus sin square theta upon 1. तो न्यूमरेटर में cos square theta से डिवाइड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में भी cos square theta से डिवाइड कर देते हैं. This is same as dividing by 1. कैंसिल हो जाएंगे cos square theta, है ना? So नेग्लिजिबल है. So now अब न्यूमरेटर में सेपरेट कर दे cos square theta, तो यहाँ पे बनेगा cos square theta upon cos square theta which is 1. यहाँ पे बनेगा यहाँ पे tan square theta minus tan square theta, and नीचे this is sec square theta. हाँ 1 upon cos square theta sec square theta हो गया. Sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. Right. तो ये वाला फॉर्म आ गया. Got it. All three forms are important. बहुत ज्यादा काम आने वाला है. cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. तो मतलब cos theta का जब फॉर्म लिख रहे हैं तब 2 cos square theta minus 1 आएगा, और it is equal to 1 minus 2 sin square theta आएगा, और it is equal to 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. सबका ध्यान रखना है. अब ये ध्यान रखना है कि जहां पे मैंने अभी 2 थीटा यूज किया है, तो ऑन द राइट हैंड साइड इट इज थीटा, एंगल इज हाफ. तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है cos थीटा, ठीक है, cos थीटा को वी कैन राइट एज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, सो एंगल इज हाफ -1, ऐसा लिख सकते हैं. आएगा समझ में? सर मैं समझा नहीं. अरे यार यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये 2 थीटा है. हाँ तो उधर एंगल हाफ हो गया ना उसका. नाउ दिस इज एन आइडेंटिटी. ओके हाँ. तो अगर यहाँ पे थीटा आएगा तो इधर हाफ हो जाएगा उस एंगल का. और 1 minus 2 sin square theta by 2 और 1 minus tan square theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2. ठीक है, ये डबल एंगल फॉर्मूले में हर जगह ऐसा लिख सकते हैं. So sin theta is equal to 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 लिख सकते हैं. Next, third, tan 2 theta. ठीक है, tan 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. सर इसका डेरिवेशन में कोई एक बार ट्राई कर सकता हूँ.
ट्राई कर, कैसे करेगा? सर एक बार आप tan a प्लस बी का फॉर्मूला बता सकते हो? मेरे पास नोट्स नहीं है। tan a प्लस बी का मैंने फॉर्मूला बताया ही नहीं अभी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला वी कैन डिराइव फ्रॉम sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी। भाई इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे डिराइव करने के लिए ये वाला, बट लिख लिए अभी। tan a प्लस बी साइन अपॉन कॉस, साइन a प्लस बी की वैल्यू डाल दे। करेक्ट। पूरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos a cos b से डिवाइड कर दे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। डिवाइड देम बाय cos a cos b। क्या होगा, इसको सेपरेट कर दोनों में, तो यहाँ पे बनेगा साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। कॉस बी कैंसिल, साइन ए अपॉन कॉस ए इज टैन ए। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे cos a और cos a कैंसिल हो जाएंगे एंड देन tan b। टैन बी डिवाइडेड बाय ये पूरा कैंसिल हो जाएगा एंड देन माइनस। अरे तो क्या बचेगा बता तो सही, कैंसिल हो गया तो। वन सेकंड सर। सर वो नीचे cos भी है ना? हाँ यार। ओके। हाँ तो देन माइनस tan a tan b। अरे वन माइनस से पहले कुछ नहीं बचेगा क्या? क्या कर रहा है? इसको सेपरेट करूंगा मैं तो क्या cos a cos b अपॉन cos a cos b लिखने पे कुछ नहीं बचेगा, जीरो हो गया वो। हाँ वन माइनस, सॉरी। तो फिर कौन बोलेगा वन? माइनस ही बोल रहा है सॉरी, सीधा ही, उसको वन हटा ही दिया, मतलब वो तो वन फालतू है। माइनस tan a tan b। वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस से टैन ए हो गया, साइन बी अपॉन कॉस बी टैन बी हो गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टैन ए प्लस बी। चल फिर टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला बता। वन सेकंड। सर आई नीड अ मिनट। अरे इतना मिनट लेगा क्या तू यार इसके लिए भी? देखो मैंने बता रखा है कैसे करना है। टैन ए माइनस बी के लिए हाँ देन बी को रिप्लेस कर माइनस बी से इन दी अबव आइडेंटिटी। अच्छा ओके तो ये ए माइनस बी बन गया यहाँ पे बनेगा टैन ए प्लस टैन माइनस बी, वन माइनस टैन ए इंटू टैन माइनस बी। टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा। हाँ तो tan a माइनस tan b अपॉन वन प्लस tan a tan b। करेक्ट। ओके ये दोनों फॉर्मुलेज हैं। अब यहाँ से टैन टू थीटा डिराइव कर सकता है। So one second, I just need to. Done. हाँ टैन टू थीटा का फॉर्मूला डिराइव कर सकता है क्या?
Sir, 1 minute, sir. क्या? Sir, 1 minute, sir. हो गया 10. Sir, 2 tan A upon 1 minus 2 tan A. 2 tan theta upon 1 minus 2 tan theta. 2 tan थीटा होगा। देख क्या गलती कर रहा है, जोरदार। अरे ये तुझे यहाँ पे एडिशन दिख रहा है क्या? tan a प्लस tan b थोड़ी है नीचे। हाँ, अरे क्या कर रहा हूँ मैं? 2 tan A upon 1 minus tan square theta. अरे तो a एक जगह a यूज ए कर रहा है, नहीं, एक जगह सॉरी. थीटा यूज कर रहा है, वाह यार। 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. हाँ, ये आ जाएगा इधर से। a और b अगर थीटा हो गए तो यहाँ पे थीटा 2 थीटा हो जाएगा, tan 2 थीटा। इसको s से भी डिराइव कर सकते हैं, डिफरेंट डेरिवेशन। देख, tan 2 थीटा को लिखेंगे sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। sin 2 थीटा का तो एक ही फॉर्मूला है, दिस इज 2 sin थीटा cos थीटा। cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में कैन बी हाँ, इसको ऐसे ले जा। ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नीचे वाला है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर जो है, दिस इज सेम एज sec स्क्वायर थीटा। so this will be multiplied to the numerator. so 2 sin theta into cos theta into sec square theta upon 1 minus tan square theta लिख सकते हैं, करेक्ट? now sec square theta is 1 upon cos square theta, है ना? this is 1 upon cos square theta. तो एक cos और एक cos कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 sin theta अपॉन cos theta बचेगा। 2 sin theta. अब ये सब करना है, ठीक है? ये सारे एक एक स्टेप में लिखने नहीं वाला हूँ, इधर 12th में आके नहीं होगा ये सब, ठीक है? टिल नाउ आई हैव बीन राइटिंग अ लॉट ऑफ स्टेप्स, बट अब थोड़ी हैबिट डेवलप कर, ठीक है? मेरे साथ पढ़ रहा है तो कि ट्राई टू डू मोर थिंग्स मेंटली, और कैलकुलेटर पे भी डिपेंड नहीं करना है ज्यादा। ओके सर, ओनली व्हेन नेसेसरी। सो वी आर, हाँ, वी वोंट बी डूइंग सो मेनी स्टेप्स, सारी चीजें मेंटल होने वाली हैं। cos theta into 1 upon cos square theta, cos theta cancel, 2 sin theta upon cos theta बच रहा है, that 2 tan theta and upon then 1 upon 1 minus minus tan square theta. ये इसका फॉर्मूला है, हाँ, ठीक है? so we can derive it like this as these are the double angle formulas, ठीक है? sin cos और tan के, cosec sec और cot के भी अपने को जरूरत नहीं है, ओके, ठीक है? अगर कभी काम में आते हैं तो अपन उस वक्त डिराइव करेंगे, अभी ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं, एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके सर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट a few other formulas पहले, that is sin a plus b into sin a minus b. so now this is a product, sin a plus b into sin a minus b is equal to sin square a minus sin square b. very important again.
वी आर डूइंग स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ओनली फॉर दोज विच आर इंपॉर्टेंट टू अस, ठीक है। तो पहले से अपन डेरिवेशन कर रहे हैं ताकि बाद में अपन डेरिवेशन के पीछे नहीं पड़े रहे। ऐसे तो बहुत हजारों फॉर्मूलाज होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, बिकॉज देयर आर सो मेनी वेज वी कैन इंटरचेंज देम। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका डेरिवेशन साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। जल्दी से इसका फॉर्मूला लिखते हैं। अब what we look at is this is same as a plus b into a minus b. So उसमें आइडेंटिटी लगाएंगे, दिस इज a square minus b square, that is sin a cos b का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं sin square a into cos square b माइनस b का स्क्वायर cos square a into sin square b। a plus b into a minus b is a square minus b square. Now cos square b को can be write we can write this as sin square b. I'm sorry, in terms of sin square b, cos square b को लिखेंगे 1 minus sin square b, एंड cos square a को चेंज करेंगे 1 minus sin square a में। सो सारे टर्म्स मैंने साइन के टर्म साइन में लिखे हैं। मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट्स, तू कर रहा है मेरे साथ में या सिर्फ देख रहा है? अगर पूरा मतलब लिख नहीं रहा है, पूरा इंटेंशन बोर्ड पे होना चाहिए। यू हैव टू बी केयरफुली सीइंग व्हाट इज हैपनिंग ऑन द बोर्ड, ठीक है। लिखते टाइम अपने आप अपना दिमाग भी चलता रहता है साथ में, तो अगर नहीं लिख रहा है तो इसको बोर्ड को अच्छे से देख, उस पर भी इम्पोर्ट वो भी मतलब सफिशिएंट है, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो ये कैंसिल हो गया। सो अल्टीमेटली वी हैव साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। एक फॉर्म ये है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इट इज cos स्क्वायर बी माइनस साइन सॉरी cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए। तो साइन में जब आ रहा है तब a पहले आ रहा है b बाद में आ रहा है, और cos में जब आ रहा है तब b पहले आ रहा है a बाद में आ रहा है। यहां से उसका डेरिवेशन हो जाएगा साइन स्क्वायर a को लिख 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर b को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर b। तो कॉस स्क्वायर b पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस हो गए, कॉस स्क्वायर a माइनस हो गया, माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर a, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। सो दिस इज द सेकंड फॉर्म। हटा दूं बोर्ड से? इसी में अगर cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी है तो दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b और cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। सेम डेरिवेशन है, ठीक है, सेम टाइप का।
cos a plus b into cos a minus b is equal to cos square a minus sin square b or cos square b minus sin square a. Next. Now the next type of formulas are triple angle formulae. अभी अपन ने डबल एंगल फॉर्मूले किए थे. So next is triple angle formulae. That means we are finding the formulas of sine 3 theta, cos 3 theta, tan 3 theta and so on. तो अपन सिर्फ sin 3 theta और cos 3 theta का देख रहे हैं अभी. sin 3 theta का फॉर्मूला होता है, एक मिनट, 4 sin cube theta minus 3 sin theta. ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल हो रहा है उसका 1/3 एंगल इधर है. cos 3 theta is equal to 3 cos theta minus 4 cos cube theta, और यहाँ पे क्यूब हो रहा है. डेरिवेशन एक का कर रहा हूं, नेक्स्ट वाला सिमिलर टाइप का है. सो साइन 3 थीटा का करते हैं. साइन 3 थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा. इसमें कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगा देंगे. दिस इज साइन 2 थीटा cos थीटा प्लस cos 2 थीटा sin थीटा. नाउ चेंज, sin 2 थीटा को लिखेंगे 2 sin थीटा cos थीटा. So 2 sin theta cos theta into cos theta is 2 sin theta cos square theta. और यहाँ पे cos 2 theta है, cos 2 theta को चेंज करेंगे 1 minus 2 sin square theta में, 1 minus 2 sin square theta. So sin theta से multiply होके we will be getting sin theta minus 3, I'm sorry, minus 2 sin cube theta. सॉरी, डेरिवेशन करके मुझे लगा कि ये हाँ गलत है. ऊपर वाले चेंज कर थोड़े से. वी हैव टू चेंज दिस. दिस विल बी 3 sin थीटा minus 4 sin क्यूब थीटा, और नीचे वाला होगा 4 cos क्यूब थीटा minus 3 cos थीटा. ये हल्का सा इसमें डिफरेंस है. चेंज दिस. ओके, यहां से cos स्क्वायर थीटा, इसलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. cos स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 minus sin स्क्वायर थीटा. टू sin थीटा into 1 is 2 sin थीटा plus sin थीटा 3 sin थीटा. 2 sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये minus 2 sin क्यूब थीटा हो गया. यहाँ पे भी minus 2 sin क्यूब थीटा है, so minus 4 sin क्यूब थीटा. This is the formula. Sin 3 theta is 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Cos 3 theta is 4 cos cube theta minus 3 cos theta. ठीक है, tan 3 थीटा का भी ऐसा ही डेरिवेशन कर सकते हैं. सर 1 मिनट, बस मेरे को नीचे वाला एक सेकंड.
डन डन ओके चले आगे सो वन लास्ट फॉर्मूला जो पढ़ना है अभी अपने को देन विल बी कंटिन्यूइंग विथ लिमिट्स ओके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए अभी इतने ही रखेंगे एज इन व्हेन रिक्वायर्ड आई विल बी टेलिंग यू कौन से कहाँ पे आइडेंटिटी है जैसे डिफरेंशिएशन में काम आ गया या इंटीग्रेशन में कोई काम आ गया तो मैं उसी वक्त बताऊंगा वो वैसे तो नहीं होना चाहिए ऐसा देयर विल बी वेरी फ्यू विच we might be using other than these ठीक है very few so last one is the maximum and minimum value of a sin theta plus b cos theta a sin theta plus b cos theta का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ओके कहाँ रुका है तू अभी कहाँ रुका हुआ है दिल्ली में नहीं सर एक्चुअली अभी नैनीताल गया था सर अभी अच्छा नैनीताल पहुंच गया हाँ ओके वेकेशन या कोई काम से गया नहीं सर वेकेशन अच्छा तेरे को पता ही नहीं था तू जा रहा है हाँ सर मतलब बिल्कुल एंड मोमेंट पे वाह चल अच्छा है हाँ ओनली फॉर द वीकेंड उसके बाद मैं वापस जयपुर आ जाऊंगा हाँ इस वीकेंड पे चल जाएगा पर आगे मत करना ऐसा ठीक है हाँ अब शेड्यूल फिक्स हो गया है तो वील बी ट्राइंग टू कीप द क्लासेस एग्जैक्टली एट द करेक्ट टाइम दैट वी हैव डिसाइडेड ठीक है बहुत मुश्किल से अगर कोई होता है तब मैं हो सकता है चेंज करूं बट आई विल ट्राई माय बेस्ट नॉट टू मानसी अगर कल नहीं आती तो फिर देख लेंगे फिर अपन कंटिन्यू करेंगे वेडनेसडे को ठीक है लेट्स सी ओके सो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन a sin थीटा प्लस b cos थीटा ये जो एक्सप्रेशन है इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऐसे समझ जैसे ऐसा कुछ आ गया 2 sin 15 डिग्रीज प्लस 4 cos 15 डिग्रीज इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मतलब इसका इंटरवल फ्रॉम वेयर टू वेयर इज दिस वैल्यू लाइंग ठीक है वो क्योंकि अच्छा आई एम सॉरी ये तो फिक्स्ड ही हो गया ये मेरी गलती थी ये तो फिक्स्ड ही हो गया तो एक ही वैल्यू रहेगा दिस विल नॉट बी एन इंटरवल होगा जब एंगल इज नॉट गिवन टू अस तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका इंटरवल बताना है कि वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी डिफरेंस समझ में आया क्या अरे साइन 15 अगर मैंने लिख दिया वो तो एक ही वैल्यू होने वाली है ना cos 15 लिख दिया तो वो तो एक ही वैल्यू होगी तो इसमें कोई इंटरवल थोड़ी रहेगा फिर तो वो एक ही वैल्यू पे आ जाएगा बस इट हैज अ वैल्यू फॉर दिस व्हेन थीटा इज नॉट डिफाइंड या नॉट गिवन तब तो इसका इंटरवल होगा क्योंकि साइन थीटा lies between -1 to 1 cos theta also lies between -1 to 1 so we can give the interval of this kind of expression तो अच्छा हाँ क्या बोल इंटरवल और मतलब रेंज डू यू मीन रेंज या हाँ रेंज और इंटरवल वही मीनिंग है हाँ सेम ओके रेंज का मतलब यही तो है कि कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है सर अंडरस्टूड so if we have a sin theta plus b cos theta we divide and multiply by root of a square plus b square रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया केशव ध्यान रख क्लास में सर अभी जस्ट पावर चली गई सर क्या पावर चली गई जस्ट सर हाँ दिख रहा है मुझे लाइट वाइट बंद हो गई क्या हुआ या अभी आ गई ना वापस सर इट्स फाइन यू कैन कंटिन्यू अभी आ गई वापस या नहीं सर लाइट अभी चली गई है पता नहीं इट्स ऑन इन्वर्टर सर अभी चल जाएगा ठीक है सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मल्टीप्लाइंग बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है
and dividing by root a square plus b square. तो divide अगर मैं कर रहा हूँ, I am taking that inside the bracket. So दोनों से divide, दोनों divide हो जाएंगे उससे. ठीक है? Why are we doing this? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही क्यों लिया अपन ने? उसका रीजन ये है कि अगर मैं ऐसा ट्राइंगल बनाऊं where a is one side and b is another side, hypotenuse will be root a square plus b square. That's why we have taken root a square plus b square. उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया. Now because of this ये वाला क्या बन गया? अब जैसे वो राइट एंगल लिया मैंने, ठीक है, लेट दिस एंगल बी अल्फा. ओके सो तो देन दिस विल बी सर cos alpha. cos alpha, this will be cos alpha. और ये क्या हुआ? So that will be sin alpha. Sin alpha. Sin alpha. So this is root of a square plus b square into sin cos alpha plus cos alpha sin theta plus sin alpha cos theta. ठीक है? क्या लग रहा है ये? Does this look similar to something? Yes sir. So we can write it as sin alpha plus theta. अरे क्या बात है, एकदम करेक्ट, सही बोला है. कंपाउंड एंगल फॉर्मूला का रिवर्स यूज किया है. ठीक है? sin theta into sin a into cos b plus cos a into sin b, that is sin a plus b. So this can be written as, very nice, this is same as sin of alpha plus theta या theta plus alpha, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. Now what happens? ये एक sin of some angle है, so this is always greater than or equal to -1 and less than or equal to 1. Sir, अरे sin sir how can it be greater than equals to -1? मतलब 0 से तो नीचे जा ही नहीं सकता ना. क्या नहीं जा सकता 0 से नीचे? साइन की वैल्यू 0 से नीचे नहीं जा सकती. क्या कर रहा है यार, ये नहीं पढ़ा हुआ क्या तूने? साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1. क्या कर रहा है? 10th में आता तो है यूनिट सर्कल. हो क्या रहा है? Got it. अरे ये पता है ना तुझे, -1 to 1. यस और नो, या मैं बताऊं? Yes sir, sir, अभी हाँ. So sin theta plus alpha is greater than or equal to -1 less than or equal to 1. That means ये पूरी वैल्यू अब -1 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है. So this is greater than or equal to minus. हाँ क्या हुआ? Yes. अच्छा okay, it's problem with my internet. What happened? हाँ now it's fine. क्या हुआ? सर नहीं, वो वीडियो लैग, मतलब वीडियो एंड ऑडियो बोथ लैग हो रहा है. अभी ठीक है? हाँ सर, इट्स बेटर. ओके. अभी वीडियो क्वालिटी इज नॉट वेरी क्लियर सर. अच्छा, लेट मी सी. तेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम है क्या? आई एम सेंडिंग रेजोल्यूशन ऑफ 720 by 1280. सो तेरे पास मतलब 720 by 1280 आना चाहिए. सर अभी ब्लर्ड है अभी स्टिल. फिर तेरे इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है?
सर यू कैन कंटिन्यू, बीच में फिक्स हो जाता है कभी, देख लो हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। सही होने दे, उसके बाद ही कंटिन्यू करेंगे। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ऑडियो और वीडियो दोनों पे। सर अभी भी वीडियो तो लैग हो ही रहा है, वीडियो भी लैग हो रहा है, प्लस इट्स आल्सो ब्लर्ड। अच्छा ठीक है। तो किससे चला रखा है तूने इंटरनेट? क्या चीज से? इंटरनेट किससे चला रखा है, मोबाइल या नहीं सर, वाईफाई है सर। होटल का? नहीं सर, आई एम नॉट स्टेइंग इन होटल सर, मेरे मतलब कजिन्स का घर है। अच्छा ओके, ऑलराइट। सर माय इंटरनेट कनेक्शन लुक्स फाइन सर राइट नाउ, मेरा चल रहा है। इनफैक्ट आपका, आपके उस पे रेड रेड हो रहा है अच्छा नेटवर्क। ओके। बट मुझे ऐसा सच कुछ दिख नहीं रहा है कि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या। बैंडविड्थ भी 2 MB पर सेकेंड आ रहा है। 1 मिनट और देख लेते हैं, नहीं होता है तो आई विल रीस्टार्ट दी वाईफाई राउटर। यस सही है क्या अभी? केशव यस सर। सही है क्या अभी? सर नहीं, लैग तो बहुत ज्यादा हो रहा है। लैग हो रहा है, चल मैं एक बार यस राउटर सर, रीसेट अभी करता हूँ। बहुत ज्यादा लैग हो रहा आ, है। हाँ 4-5 मिनट लग जाएंगे उसमें, उसको वापस ऑन होने में। ठीक है, सो स्टे इन द मीटिंग। हाँ सर, आई स्टे इन द मीटिंग। हाँ
हेलो, यस केशव। हाँ बता। अब हेलो। आवाज नहीं आ रही मुझे। ओके, माय स्पीकर वाज नॉट कनेक्टेड। हाँ अब बोल। यस सर, इट्स अब ऑडिबल। अब सही है। हाँ ऑडिबल सर। एंड वीडियो हाँ, वीडियो इज आल्सो फाइन। फाइन। ठीक है। ओके, सो नाउ sin theta plus alpha lies between -1 to 1. दैट मीन्स जब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी तब ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। वाई? बिकॉज दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव और ये तो एक फिक्स्ड वैल्यू है। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो फिक्स्ड है। वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी है? साइन ऑफ दिस एंगल। सो व्हेनेवर दिस इज मिनिमम, दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन इज मिनिमम। सो इसका मिनिमम वैल्यू -1 है, तो ये पूरे का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो पूरे का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस एक्सप्रेशन always lies between minus a square plus b square and a root minus root a square plus b square and root a square plus b square. Is greater than or equal to minus of root a square plus b square, less than or equal to root a square plus b square. Got it? Yes. ठीक है. So this is completing our we have completed our identities, trigonometric identities. ठीक है, जितनी अपने को अभी रिक्वायरमेंट है. Though I have told you everything with derivation and proof. ठीक है, कभी भी कोई डाउट होता है तो डेरिवेशन या प्रूफ आना चाहिए. ठीक है, do not make mistakes in using the identities. Okay, so now we can start with the chapter limits. Okay, limits, again a very important chapter of calculus, even more important than functions I may say, because limit का जो concept है, if that is not clear to us, calculus पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है. Calculus involves things which are very large or very small everywhere. Differentiation जब अपन कर रहे हैं, it means that we are finding, in जैसे physics में करते हैं, we are finding the instantaneous velocity at a point. ठीक है, using differentiation. So that involves going to a level of thinking where two things are so close to each other, or they are so the distance between them is so small that it is same as the points are the same. It is same as saying that the points are exactly at the same place. The distance is negligible. क्या? Sir, I'm saying that the distance will be negligible. Yes, negligible. अब ये negligible का क्या मतलब होता है? बता. You have studied it in physics. Almost to the point that it can be ignored. To the point that it can be ignored. अब यही तो बात, ऐसे बात करना is wrong. ठीक है? It is very wrong. जैसे फिजिक्स में बोल देते हैं कि फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, तो वो अब आइडियल सिचुएशंस की बात करने लग जाते हैं. समझ में आ रहा है? ठीक है, these things never happen in real life. So अब maths is a precise language. It is a language. It is a tool that we use to communicate our physics learnings or physical जो भी अपन quantities पढ़ते हैं, formulas पढ़ते हैं, they all come from using mathematics. ऐसे बोल सकता है कि बैक एंड मैथमेटिक्स है, फ्रंट एंड फिजिक्स है. समझ में आ रहा है क्या?
तो नाउ मैथ्स हैज टू बी वेरी प्रिसाइज. मैथ्स कैन नॉट बी कि आप ऐसे बोल रहे हो कि नेग्लिजिबल हो गया कोई चीज. Whenever we're talking about in maths, we have to be precise about things. ठीक है. बट ये मतलब नहीं है कि मैथ्स की एक कोई अपन ने जैसे अप्लाइड मैथ्स होता है, वी हैव सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग, वो मैथ्स नहीं है. मैथ्स इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट एज वेल, बिकॉज when we see maths encapsulates everything in the universe. फिजिक्स तो तब भी चलो थोड़ा सा अपना इतना प्रिसाइज नहीं होता है. इट कैन बी समथिंग, जैसे अपन एक्यूरेट नहीं लिखते हैं इतने फॉर्मूलाज व्हेन वी आर टॉकिंग इन स्कूल. ठीक है. एवरीथिंग इज नॉट सो एक्यूरेट, इट कीप्स इवॉल्विंग. बट मैथ्स इज सो एक्यूरेट कि वो अगर उस मैथ्स से अपन ने कोई इक्वेशन दे दी तो वो यूनिवर्सली ट्रूथ होने वाली है. इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ट्रू. फिर उसमें ये नहीं आएगा कि यार ये वाला फॉर्मूला अपन ये वाला वेरिएबल अपन ने यूज नहीं किया, ये वाला अपन ने कुछ नेग्लिजिबल ले लिया, तो वो सब चीजें फिर गलत हो जाएंगी. दैट इज ओके इन फिजिक्स बट नॉट इन मैथ्स. समझ में आ रहा है क्या? जैसे ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है पता? ग्रेविटेशन का फॉर्मूला? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स का नहीं पता? सर ग्रेविटेशनल का फोर्स का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ा तुमने? सर v is equals to u plus at या क्या? फिर w is equals to mg. W is equal to mg? नहीं यार, ग्रेविटेशन. Sir, which one, sir? I don't remember. Force, gravitational force is equal to g into m1 into अच्छा, m1 into upon r square. हाँ, अच्छा that, sorry. हाँ, क्या हो रहा है? क्या हो गया मेरे? Gravitational force का फॉर्मूला ही तो यही है. हाँ, sorry. अभी I ये know this formula. फिर देखो याद ही नहीं आ रहा. बोल. सर फॉर्मूला पता नहीं, रिमेम्बर नहीं कर पाता. अब ये न्यूटन ने ये वाला फॉर्मूला दिया था. ठीक है. नाउ दिस लुक्स वेरी अमेजिंग कि यार ये तो बहुत ही शानदार है. इज दिस व्हाट इज हैपनिंग व्हेन टू बॉडीज are like forcing exerting a force on each other. Very beautiful formula. But अभी ये precise थोड़ी है. This is not precise. The gravitational constant changes, or it is not what the Newton gave us. ठीक है. आइंस्टाइन जब आया था उसने बोला था कि ये अभी इतना परफेक्ट नहीं है. मतलब तो अकॉर्डिंग टू प्लैनेट चेंजेस अकॉर्डिंग टू प्लैनेट नहीं है. लेट मी थिंक. कुछ तो चेंज था. आई थिंक द मास और द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चेंजेस बिकॉज मास को अपन लाइट की स्पीड या ऐसे कुछ से डिवाइड करके ऐसे रूट में ऐसा लिखते हैं कुछ. दिस इज नॉट प्रिसाइज. अभी तुम लोग मॉडर्न फिजिक्स करोगे तो समझ में आ जाएगा. 12th में है ना मॉडर्न फिजिक्स? हाँ सर है. We have done this, मतलब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर तो हो गया, बट we did not. हाँ, तो मॉडर्न फिजिक्स में आके यू विल सी कि ये जो फॉर्मूलेज हैं, these are not exactly 100% correct. Okay. There are changes because जब आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, उससे पता चला कि these are not exactly the correct formulas. There are some different things that are happening. Okay, got it. ठीक है. There are minute changes that we have to take into because of our relativeness in the universe. आ रहा है समझ में? ठीक है. जैसे मुझे याद तो नहीं आ रहा and I will not tell you the wrong thing, but mass I think is changed because of relative speed or something like that. So या फिर constant change होता है. तो अब ये फिजिक्स है, वहां पे ऐसा चलता रहता है. You keep on studying things and you keep on improving. ठीक है. अब जैसे इसमें मैथ्स का काम आ रहा है. जैसे अपन ने कोई फोर्स निकाल लिया, how do we calculate the gravitational constant? उसमें मैथ्स काम आएगा. ठीक है. जैसे ये सब तो you have given theories about physics और उसमें मैथ्स यूज करके ये फॉर्मूला आ गया. But how do we know the gravitational constant? उसके लिए we do an experiment where we take two masses in some
contained area and we see how much force is being applied by each of them, कैसे वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अपने पास फोर्स पता है, अपने को मास पता है, रेडियस पता है उनके बीच में, तो वी कैन यूज मैथ्स टू फाइंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर अपन कितना प्रिसाइज हो सकते हैं, जितना ज्यादा प्रिसाइज हो सकते हैं उतना ज्यादा एक्यूरेट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता रहेगा। ठीक है, सो मैथ्स इज प्रिसाइज। फिजिक्स में फिर हो सकता है कि वो अपन थोड़ा सा चेंज करते रहे अकॉर्डिंग टू आवर लिमिटेशंस। जैसे कंप्यूटेशनल पावर आई उसके बाद सारी चीजें चेंज हो गई। पहले क्या होता था, पहले 1 मीटर कैसे डिफाइन करते थे पता है तुझे? हाउ डू वी डिफाइन 1 मीटर का वो होता था सर, एक मतलब ब्लॉक था। नहीं ब्लॉक नहीं था, some rod of some sir, it was kept in the steel alloy। हाँ, स्विट्जरलैंड या पेरिस में कहीं पे रहता था वो। हाँ, पेरिस में in the Louvre। So they used to keep this steel alloy metal object which was 1 meter and this was the standard unit everywhere। ठीक है, अब वो किसी भी environment में रहे, there might be some changes in it। कभी गर्म थोड़ा environment हो गया तो change हो गया, very minute, expand हो जाता। ठीक है, like this। तो अब क्या हो गया, because we modified in our calculations, our computational power, अब 1 मीटर कैसे डिफाइन करता है पता है क्या? यूजिंग द स्पीड ऑफ लाइट। करेक्ट, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इतना एक्यूरेटली अपन ने कैलकुलेट कर लिया कि 1 मीटर अब चेंज ही नहीं होगा कभी भी, अनलेस वी गो इवन मोर एक्यूरेट इन द स्पीड ऑफ लाइट, इफ दैट्स इवन पॉसिबल। ठीक है, सो these are improvements that keep on happening। Maths, even though it is very precise, it is an abstract subject। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग अभी लिमिट्स में समझ में आ जाएगा, क्योंकि लिमिट्स में अपन क्या बात करते हैं, आइदर द क्वांटिटीज आर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल, ऐसा टाइप की चीजें आएंगी लिमिट्स में। ठीक है, जैसे ये एक पॉइंट है, ठीक है, या एक नंबर ले ले ऐसा। नाउ आई एम सेइंग x is tending towards 3 plus, so this is the number line। suppose I write x is tending towards 3 plus, इसका मीनिंग होता है दैट x is tending towards 3 from the right hand side। अभी और डिटेल में करेंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। सो आई एम टेंडिंग टुवर्ड्स 3 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, बट x 3 के इक्वल नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू 3। so x is approaching towards 3 but not exactly 3। अब तू सोचेगा कि I can think of the smallest quantity which is next to 3। ठीक है, but वो possible नहीं है, that's why it becomes abstract। so as x is tending towards 3 from the right hand side not equal to 3, x की वैल्यू जैसे तूने ले ली कि 3.000000001 हो गई, very close to 1 but still not close enough। this is a wrong assumption to take because ये भी अभी बहुत दूर है 3 से। when I'm talking about tending towards 3, I can mean that this is 3 dot, या फिर ऐसे ले लेते हैं, if you understand this, 0.3 into 10 to the power या 3 into 10 to the power minus 100। this is also very close to 3 but again not sufficiently close। so this is 3, नहीं तो sorry this is 3 sorry। अच्छा ये 3 हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, ये मेरा थोड़ा ये तो 0.00। sorry I'm sorry, yes this will be 3 plus 1 into 10 to the power 100 minus 100। अब सही है, yes you were correct। ठीक है, again not sufficiently close to 3 because concept of limit is, या यहाँ पे जो मैंने अभी बात कर रहा हूँ मैं, x has to be, it is infinitely close to 3, मतलब we cannot think how close to it is।
ठीक है, but it is not 3. तो वो जब इतना ज्यादा पास है, इतना ज्यादा पास है 3 के, sometimes we take it as 3. आएगा समझ में? हाँ सर. तो ये ही कॉन्सेप्ट फिजिक्स में यूज होता है, बट उसमें ऐसे बोलना कि वो नेग्लिजिबल है, that is not sufficient. You have to understand what do we mean by not it is negligible. Because जब भी मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि x tends to some quantity, yes, the distance tending towards 0, उसका मतलब ये है कि वो जो डिस्टेंस है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में, it is so infinitely close, it is same as the points are same on top of each other. Okay, so with this let's start limits. Okay, so before starting with the limits part, we have to see a few definitions. ठीक है, जिससे अपन आगे limits में थोड़ा सा समझ पाएंगे what is happening. So some definitions. First one, neighborhood of a point x is equal to a. Point or number, ठीक है, neighborhood of a point x is equal to a. What we mean by this is, say we have a number line, a is on the number line, तो point की जगह number ही लिख ले. Neighborhood of a number x is equal to a. So a is a number. इसका neighborhood हम ऐसे define करते हैं, it is an interval from a minus epsilon to a plus epsilon. So this is defined as the neighborhood of a minus epsilon, where epsilon is a number. Epsilon is some number which is positive. तो a माइनस एप्सिलॉन करेंगे तो वो एक लेफ्ट साइड में क्वांटिटी आएगी, नंबर आएगा, और a प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो वो राइट साइड में एक नंबर आएगा. तो ये जो इंटरवल आ रहा है, a minus epsilon to a plus epsilon, that is known as the neighborhood of a. ठीक है, epsilon, it looks like the belongs sign. जैसे belongs का साइन है वैसा ही epsilon का साइन लग रहा है. So the difference is actually the size of the signs. epsilon अगर बड़ा है, sorry, belongs वाला साइन अगर बड़ा है तो epsilon is smaller in size. ठीक है, दिखने में ऑलमोस्ट सेम से लगते हैं, ये भी ऐसा ई बनता है, ये भी ऐसा ई बनता है, बट दिस इज बिगर एंड दिस इज स्मॉलर. सर फिजिक्स में तो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनाते हैं ना. कैसे? फिजिक्स में तो this is the spelling of epsilon. Sir, I mean like this one. हाँ, वो e है. करेक्ट वे इज दिस वन. ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट नहीं है. दिस इज द करेक्ट एप्सिलॉन. ठीक है, बाकी तो अगर कंप्यूटर पे चेक करेगा तो ज्यादा पता चल जाएगा कैसे एग्जैक्टली बनाते हैं. नाउ नेबरहुड ऑफ ए मींस that we are talking about this interval a minus epsilon to a plus epsilon, open bracket. ठीक है, open bracket है. Now epsilon का concept in itself is important. ठीक है, because
क्या होता है फिजिक्स में, क्या यूज करते हो तुम लोग? एप्सिलॉन इज टेकन एज टू बी अ वेरी स्मॉल वैल्यू, है ना? स्मॉल ही लेते हो ना एप्सिलॉन में, एप्सिलॉन को ऐसा लेके सर चलते हैं नहीं, कि small है। एप्सिलॉन मैं फिजिक्स वाला तो आई वाज टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, वो नहीं वहां पे उसको नहीं, वी डिनोटेड एज एप्सिलॉन। नहीं नहीं वो डिफरेंट हो गया, वो वाला डिफरेंट है। अच्छा। ठीक है, जैसे डिस्टेंसेस एंड मेजरमेंट में अगर लेते हो, मोशन में अगर लेते हो, हाँ सर, वेलोसिटी तो वगैरह वी में। टेक आई थिंक वी टेक लैम्डा। अच्छा, लैम्डा, ओके हो सकता है, कोई बात नहीं। सो एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट इज दैट एप्सिलॉन इज कैन बी वेरी स्मॉल और कैन बी वेरी बिग और कैन बी इंटरमीडिएट समवेयर। वी डू नॉट डिफाइन हाउ बिग और हाउ स्मॉल इज एप्सिलॉन। ठीक है, तो कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा है कि मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू लिखी हो, ठीक है? इट कैन बी वेरी स्मॉल, इट कैन बी वेरी बिग, डजेंट मैटर। इट मतलब इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, कहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में अपन यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एप्सिलॉन क्या ले रहे हैं। इन जनरल it can be very big or very small, but usually we take epsilon to be a very small quantity, इसलिए उसका मिसकंसेप्शन हो जाता है कि एप्सिलॉन स्मॉल ही होना चाहिए। ठीक है, मिसकंसेप्शन की वजह से क्या होता है, we understand that maybe the neighborhood is just very close to a, but ऐसा जरूरी नहीं है। neighborhood of a can be very large or very small। ठीक है, but usually we use epsilon to be a very small quantity now। So because of that, जब a minus epsilon a plus epsilon ले रहे हैं तो ये वाला जो इंटरवल है, दिस इज नोन एज द नेबरहुड ऑफ a। नेबरहुड का मीनिंग समझ, नेबरहुड इज रिलेटिव, इट इज नॉट डिफाइंड कि नेबरहुड कितना बड़ा है या कितना छोटा है। फॉर एग्जाम्पल अपन घर का नेबरहुड बोलते हैं तो वी may से 4 houses here or 4 houses there, 4 houses on this side or 4 houses on this side, that is our neighborhood, or on the street that we are living। बट जैसे मैंने जयपुर का नेबरहुड बोला, it might be 100 kilometers from Jaipur on this side and 100 kilometers from Jaipur on this side। तो नेबरहुड अब चेंज हो गया, जो 4 houses था वो नाउ 100 kilometers हो गया। इफ वी टॉक अबाउट नेबरहुड ऑफ अ स्टेट, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। वहां पे नेबरहुड ऑफ स्टेट में कौन से स्टेट्स आ जाएंगे? हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, ऑफ से राजस्थान। सो नाउ द डिस्टेंस इज इन hundreds of kilometers। ठीक है, so again it becomes relative to what we are talking about। this is the definition of neighborhood of a number। second definition, deleted neighborhood of a। deleted neighborhood of a, that means if I say x belongs to deleted neighborhood of a, it would mean that x belongs to a minus epsilon to a plus epsilon, excluding a, excluding the value a। सो a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन के बीच में है, बट a नहीं है, तब डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a में होगा x। ओके, थर्ड, write
but deleted neighborhood of A. Right deleted neighborhood of A. That means right side of the interval, but deleted neighborhood of A. इसका मीनिंग है x belongs to A, open bracket A, to A plus epsilon. So when x belongs to A plus epsilon, then x is in the right deleted neighborhood of A. ठीक है? So right side of the interval and not equal to A. Left deleted neighborhood of A. This means x belongs to left side of the interval and not equal to A. So A minus epsilon to A. Got it. ठीक है? These are the definitions we need to know. आगे चलते हैं. So now the symbols that we use in limits. Symbols का meaning is समझना है. So if I'm writing x tends to A plus, either we use this symbol. Some books also use the symbol x tends to A plus 0 or x tends to A plus like this. ठीक है? All these symbols mean the same thing. It means that x belongs to the right deleted neighborhood of A. It means that x is belonging to the right deleted neighborhood of A and tending towards A. ठीक है? So right side से A की तरफ approach कर रहा है. If I write x tends to A minus or x tends to A minus 0 or x tends to A minus like this, it means that x belongs to the left deleted neighborhood of A and tending towards A. Then if I write x tends to A simply, it means that x belongs to the deleted neighborhood of A. Deleted neighborhood of A. And tending towards A. मतलब दोनों लेफ्ट और राइट साइड से टेंड कर रहा है A की तरफ. Then we use this symbol. Got it. ठीक है? So now we define limit. Excuse me, sir. हाँ. सर थोड़ा आज थोड़ा जल्दी स्टॉप कर सकते हैं बिकॉज मतलब क्या हुआ? तूने 12 बजे के लिए बोला था मुझे. हाँ सर बट आई हैव टू लीव सर. बुला रहा. कहीं जाना है? यस सर. तो कितनी देर रुक सकता है अभी? सर राइट नाउ इट्स सर आई हैव टू लीव इन 5 minutes. 5 minutes में भी जाना है? बस इतना सही मेरे को टाइम दिया तूने. चल ठीक है 5 मिनट तो करते हैं. ओके सर. ओके
हाँ, ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं तुझे बार बार, क्योंकि आई नो द हैबिट्स ऑफ आईबी स्टूडेंट्स। अभी बोलेंगे कि सर आज अब से मैं क्लास नहीं छुट्टी लूंगी या लूंगा, एंड द नेक्स्ट सर नहीं, वीक बट दे आर सर लीडिंग टू फ्रॉम नेक्स्ट वेकेशन क्लास अगेन। सर पूरा फुल फुल टाइम सर, नेक्स्ट क्लास पूरा फुल। देखते हैं, अभी तो बोल रहा है तू काफी, देखते हैं। अब अपन ने वो लिखा, नाउ we come to limit. How do we write the limit? As f of x जो function होता है, it is the dependent, it is dependent on the value of x. ठीक है, f of x को y भी लेते हैं, y is the dependent variable. So as f of x is dependent on x, as x tends to a, and जब अगर x a की तरफ टेंड कर रहा है, a प्लस की तरफ, अगर x a प्लस की तरफ टेंड कर रहा है, and f of x is tending towards L1, मतलब x a प्लस की तरफ टेंड कर रहा है, तो f of x L1 की तरफ टेंड कर रहा है, then we write this as the right hand limit. This is the right hand limit. It is equal to limit. Sir, what is L in this case? ये वाला L. हाँ. This is some value that f of x is tending to. It is approaching some value. अच्छा, ठीक है. अब right hand limit, this इसको बोलते हैं right hand limit. That means RHL is equal to, it is represented by x tends to a plus f of x, which is equal to L1. समझ इस बात को, I am repeating it again. When x tends to a plus, अब x क्योंकि x के ऊपर f of x की वैल्यू डिपेंड कर रही है, तो अगर x किसी नंबर की तरफ जा रहा है तो फंक्शन भी किसी वैल्यू की तरफ जाएगा. तो अगर जब x a की तरफ टेंड कर रहा है फ्रॉम द राइट हैंड साइड, फंक्शन इज टेंडिंग टुवर्ड्स सम वैल्यू L1. दिस इज नोन एज राइट हैंड लिमिट, which is represented by limit x tends to a plus f of x is equal to L1. अच्छा, हाँ, got it sir, got it. इसको ऐसे रीड करेंगे that when x tends to a plus f of x tends to L1. And right hand side, right hand limit क्यों है? Because x is tending towards a from the right hand side. F of x is equals to L1. Then as x tends to a minus and f of x is equal to L2, sorry, f of x tends to L2. Tends to L2. So now x is tending towards a from the left hand side, x belongs to the left deleted neighborhood of a. F of x tends to L2, then the left hand limit, this is the left hand limit, which is represented by limit x tends to a minus f of x is equal to L2. To read this, it would mean that when x tends to a minus, f of x tends to L2. Sir, one minute sir. Answer. So we write limit x tends to a, f of x exists. इसका मीनिंग है कि लिमिट एट x is equal to a exists only when LHL is equal to RHL is equal to a finite value.
So limit at x is equal to a. Either you write it like this or write it like this. Meaning same है. इसका और इसका meaning. ये limit at x is equal to a और limit x tends to a f of x. So limit at this point a, limit at the number a will exist only when LHL is equal to RHL and both are finite. तभी हम बोलेंगे कि limit exist कर रही है. Otherwise we would not say that the limit exists at this point. इसके cases मैं next class में लेने वाला हूँ अब. ठीक है? So we'll stop here today. Revision is a must. जब भी time मिले revision करना है. एक दो बार identities जो मैंने कराई है आज उन सबको लिखना है और फिर इसके बाद लिमिट्स की ये डेफिनेशंस याद करनी है. Got it? Yes sir. हाँ. Okay. तो अगर कल क्लास होती है तो तेरे को रिकॉर्डिंग देखनी है एंड वेडनेसडे को फिर अपन मिलेंगे फिर. ठीक है? Yes sir. All right. That's it for today. Okay, thank you sir. Okay, bye.